اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک سندھ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کے شہر کے فواروں کو فعال بنانے کے دعوے ٹھس ہو گئے۔ خیام سنما چوک کا فوارہ اعلان کے باوجود بھی فعال نہیں ہو سکا۔ بند فوارہ نشے کے عادی افراد کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں علی ریاض کی رپورٹ۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ پی ایچ اے ملتان کے وعدے اور دعوے بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ شہر کے فواروں کو فعال کرنے کا اعلان ایک عرصے بعد بھی حقیقت نہ بن سکا۔ پی ایچ اے کی شاہراہوں کو خوبصورت بنانے کے دعوے بھی شاید ایسے ہی کھوکھلے ہیں۔ خیام سنما چوک کا فوارہ اعلان کے باوجود بھی فعال نہ ہو سکا۔ بند فوارہ نشے کے عادی افراد کی آماجگاہ بن گیا۔ نشے کے عادی لوگ ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اس کو فارے کو نہیں چلانا تو کم سے کم یہ نشے کے عادی جو لوگ ہیں ان کا تو ڈیرا ختم کروایا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی طرف سے کئی بار کہا گیا کہ فوارہ فعال کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر فوارہ فعال نہیں کر سکتے تو اس کی صفائی ہی کرا دی جائے۔ انتظامیہ نے 4 سال پہلے ڈینگی کی افزائش کو روکنے کے لیے فوارہ بند کیا تھا۔ کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ شہری اولیا میں نامکمل ترقیاتی منصوبے شہریوں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگے۔ دولت گیٹ سے مچھلی منڈی جانے والے افشار روڈ کا دوبارہ افتتاح کر دیا گیا، لیکن سڑک کا تعمیراتی کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ ابراہیم خان کی رپورٹ۔ ملتان میں حکومت کی طرف سے ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھانے کا دعویٰ، لیکن زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ افشار روڈ کا دوسری بار افتتاح کر کے تختی لگا دی گئی، جبکہ سڑک کا تعمیراتی کام ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ جب یہ پلیٹ لگانے آئے ان سے ہماری بات ہوئی ہے کہ یہ پلیٹ تو لگ گئی ہے، کام نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کام بھی ہو جائے گا۔ ہم نے کہا پہلے ہمیں کام دکھاؤ پھر یہ پلیٹ لگاؤ۔ افتتاح تو ہو گیا، کام نہیں ہوا۔ انہیں بہت روکا ہے ہم نے کہ یہ پلیٹ ہم لگانے نہیں دیتے، لیکن انہوں نے لگا لیا، کہتے ہیں کام بھی ہو جائے گا۔ پہلے حکومتی ایم پی اے ندیم قریشی اور ایم ڈی اے واسا نے منصوبے کو مکمل کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد میئر ملتان چودھری نوید الحق ارائیں کی طرف سے بھی روڈ کے افتتاح کی تختی اویزاں کر دی گئی، جبکہ سڑک کی حالت میں ابھی تک کوئی بھی بہتری نہیں آ سکی۔ مقامی تاجروں نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ یہاں اتنے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، کوئی بچہ بوڑھا بوڑھی کوئی یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ کئی بندے زخمی ہو چکے ہیں، شیشے ٹوٹ چکے ہیں دکانوں کے، سمجھ نہیں۔ لیکن یہ صرف آئے ہیں اس دن پلیٹ لگائی ہے جی، افتتاح ہو گیا ہے دیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیٹ لگی ہوئی ہے، کون سا افتتاح ہوا ہے، کون سی چیز بنی ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ اس سڑک پر 200 سے زائد دکانیں ہیں۔ سڑک کی خستہ حالت کی وجہ سے کئی مرتبہ احتجاج کیا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ حکومت فوری طور پر سڑک کی تعمیر مکمل کرائے، ورنہ دولت گیٹ چوک بلاک کر کے احتجاج کریں گے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ ملتان کے زکریا پارک میں لگی گل داؤدی کی نمائش کا آخری روز، آخری دن پھولوں کی نمائش دیکھنے کے لیے ننھے بچوں نے پارک کا رخ کر لیا۔ اولیا ملتان میں 10 روزہ رنگ رنگ سردی کے پھول گل داؤدی کا فلاور شو۔ نمائش کے آخری دن زکریا پارک میں بڑوں کے ساتھ ساتھ ننھے بچے بھی پیش دکھائی دیے۔ رنگ برنگے پھول چھوٹے بچوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ننھے بچوں کا کہنا تھا کہ خوبصورت پھول دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ یہاں بہت اچھا کلرفل پھول ہے، ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں بہت اچھا کلرفل پھول ہے، ہم لوگوں نے دیکھنے آئے ہیں۔ پی ایچ اے کی جانب سے گل داؤدی کی نمائش کے لیے 16,000 سے زائد پھول رکھے گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی پھولوں کی نمائش کا انعقاد پی ایچ اے کا احسن قدم ہے۔ یہ بہت اچھی نمائش لگائی گئی ہے، یہاں پہ بہت سارے خوبصورت کلرفل پھول ہیں، اور یہ والی ایکٹیویٹیز، یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہونی چاہیے۔ پی ایچ اے کی جانب سے ہر سال گل داؤدی کی نمائش میں استعمال ہونے والے پھول مالی ہی تیار کرتے ہیں۔ کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بڑھتی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تاجر سڑکوں پر نکل آئے۔ تاجروں نے سڑک بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تاجروں کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام مہنگائی سے تنگ آ گئی۔ ملتان کے تاجروں نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ آئے دن مہنگائی، عوام پس گئی ہے، مر گئی ہے۔ روزانہ پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں۔ یہ 15 دن کے لیے انہوں نے 5 روپے جو کم کیا ہے، آج 4.5 روپے بڑھا دیا ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، کاروبار ہے نہیں، لوگ کیا کریں؟ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شہری شدید پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے غریب آدمی متاثر ہو رہا ہے۔
हुकूमत की कुछ समझ नहीं आ रही। आज जो ये पेट्रोल की कीमतों का इजाफा हुआ है, इससे अवाम पर एक बहुत ज़्यादा बोझ है, जिससे महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, खुदारा पेट्रोल की कीमतों में कमी लेकर आएँ, जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। शहरियों और ताजिरों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। खानेवाल में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का महंगाई के खिलाफ इजलास, जिसमें महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने का फैसला किया गया। खानेवाल में मुस्लिम लीग खवातीन विंग के इजलास की सदारत तहसील सदर आसमा गुल ने की। इजलास से खिताब में आसमा गुल का कहना था कि मिनी बजट से मजीद महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम को नए साल का तोहफा दिया। पहले ही आम आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। महंगाई और बेरोजगारी इस हुकूमत का आवाम के लिए तोहफा है। मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो आवाम की इस मुश्किल से निकाल सकती है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान को महंगाई के तूफान से बचाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा हफ्ते खवातीन विंग की मेंबरान खवातीन के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरे करेगी। मुल्तान में तालीमी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 स्कूल्स के हवाले से मिला जुला साल रहा। साल 2021 में कितने मंसूबों पर काम किया गया, कितने मुकम्मल हुए, कितने नए स्कूल बनाए गए, महकमा तालीम इस साल कितने बच्चों को स्कूल लाने में कामयाब हुआ है, जानने के लिए रिच वासिफ की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में साल 2021 की तालीमी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 39 मुख्तलिफ स्कीमें जारी की गई, जिनमें से 13 स्कीमों पर काम मुकम्मल कर लिया गया, जबकि बकिया 26 पर काम जारी है। इन स्कीमों को 2027 तक मरहलावार मुकम्मल कर लिया जाएगा। बच्चों के दाखिले की तो साल 2021 में 25,363 बच्चों के दाखिले का इजाफा हुआ, जबकि 298 असातिज़ा रिटायर हो गए। कोरोना की वजह से इस साल किसी भी असातिज़ा की भर्ती नहीं की गई। साल 2021 में 8 अदद नए स्कूल्स का इजाफा हुआ, जिनमें पंजाब का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल शामिल है, जबकि 2 स्कूलों को प्राइमरी से हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया गया। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, मुल्तान। दूसरी जानिब सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच की विहाड़ी आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहते हैं ताजर बरादरी के सिर्फ 3 मुतालबात हैं। हुकूमत सेल पॉइंट्स पर डिवाइस लगाने, जबरी रजिस्ट्रेशन और सदारती ऑर्डिनेंस में FVR को दिए गए पुलिस इख्तियारात के अहकामात वापस ले। अजमल बलोच का कहना था ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हुकूमती जुल्म और जबर के खिलाफ ताजर बरादरी की जंग लड़ रही है। FVR सबसे बड़ा चोर इदारा बन चुका। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए ताजरों पर जबरी टैक्स मुसल्लत कर रही है, जो ताजर बरादरी को कबूल नहीं है। ताजर बरादरी पहले भी बेतहाशा टैक्स अदा कर रही है। हुकूमत IMF के जालिमाना इक़दाम पर अमल ना करे, बल्कि ताजरों को आसान टैक्स स्कीम दे। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात फ्रेंड्स जर्नलिस्ट अलायंस के उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए। सीनियर सहाफ़ी जावेद इकबाल चौधरी सदर, बिलाल हबीब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जीत का भरपूर तरीके से जश्न मनाया गया है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अलायंस के उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आसिम सिद्दीक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर सहाफ़ी जावेद इकबाल चौधरी सदर, बिलाल हबीब जनरल सेक्रेटरी, सीनियर सहाफ़ी फारूक सिंधु नायब सदर, राना वसीम मुमताज नायब सदर, अनवारुल हक फिनांस सेक्रेटरी, चौधरी मोहम्मद हफीज ज्वाइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद सलीम चिश्ती सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मोहम्मद आमिर भट्टी मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी, मियां मोहम्मद शौकत, मोहम्मद इकबाल, जहीर मलिक, सिकंदर जमान, गुलाम हैदर मंगरियो, हुसैन अहमद और अरसलान शौकत मोहांदरा मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी मुंतखब हो गए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बतौर सदर बिला मुकाबला कामयाब हुआ हूँ और मेरे साथ जो मेरे साथी हैं सीनियर नायब सदर फरूक अहमद संधू साहब और उसके बाद जो नायब सदर हैं वो वसीम मुमताज साहब हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों को फूलों के हार पहनाए गए और ढोल की थाप पर जीत का जश्न मनाया गया। सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात, फलाही कारकुनों और शहरियों की जानिब से प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद देने का तांता बंधा रहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी 2022 रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का मुंतखब हुआ हूँ। तो मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि मैं अपने तमाम जो दोस्त हैं जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया है, जिन्होंने मेरे पे एतमाद है, और इंशाल्लाह मैं उनकी पूरी कोशिश करूँगा उनके एतबार पे पूरे उतरने की, एतमाद पे उतरने की।
डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नौ मुंतखब ओहदेदारों ने प्रेस क्लब के मेंबरानों की उम्मीदों पर पूरा उतरने का अज़्म जाहिर किया और कहा कि वो प्रेस क्लब के मेंबरान की फलाह बहबूद के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इख्तिलाफात, आलमी फुटबॉल फेडरेशन ने फंड्स मुंजमद कर दिए। खानेवाल में फुटबॉल अकेडमी की तामीर ताखीर का शिकार हो गई है। खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फुटबॉल अकेडमी की तामीर कराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इख्तिलाफात कई साल गुजरने के बावजूद खत्म नहीं हो सके। खानेवाल में 7 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली फुटबॉल अकेडमी की तामीर का काम ताखीर का शिकार हो गया। फीफा आलमी फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से फुटबॉल अकेडमी की तामीर के लिए जारी होने वाले फंड्स मुंजमद कर दिए। खानेवाल में फुटबॉल अकेडमी की तामीर न होने से इंटरनेशनल खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के आने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि जिस पार्टी की हुकूमत बनती है वो फुटबॉल फेडरेशन के शफाफ इंतखाबात कराने की बजाय फुटबॉल फेडरेशन के दफातर पर कब्जा कर लेती है, जिसके बायस आलमी फुटबॉल फेडरेशन भी फंड्स जारी नहीं कर रही। खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फुटबॉल अकेडमी की तामीर कराने का मुतालबा किया है। स्कूलों में कुरान पाक पढ़ाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग को लाजिम करार दे दिया गया। स्कूलों में कुरान पाक की तालीम को लाजमी मजमून करार दिया गया है। कुरान पाक पढ़ाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग भी लाजिम करार दे दी गई। सीओज और डीओज असातिज़ा की ट्रेनिंग के हवाले से डाटा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। नामजद किए गए असातिज़ा में से ट्रेनिंग के लिए असातिज़ा का इंतखाब किया जाएगा। प्राइमरी के लिए 2 एलिमेंट्री और 1 हाई स्कूल के उस्ताद को नामजद करना लाजिम है। पंजाब भर के सीओज को मुरासला जारी कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब की मुल्तान आमद हुई। मुशीर वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर इंसारी के घर जाकर उनके बड़े भाई हाजी अमीन इंसारी की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत और फातह ख़ानी की गई है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब के हमरा सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक और चेयरमैन PHA एजाज अहमद जंजुआ भी थे। फ़ारूक हबीब ने मरहूम हाजी अमीन इंसारी के दर्जात के बुलंदी के साथ मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी दुआ की। उन्होंने मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ अता गिलानी के भांजे मखतूम मीरा मुहय्यिद्दीन गिलानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ अता गिलानी के भांजे मखतूम मीरा मुहय्यिद्दीन गिलानी खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम मखतूम सैयद वजाहत हुसैन गिलानी के साहबजादे और सज्जादा नशीन दरबार हजरत मूसा पाक शहीद मखतूम सैयद अबू अल हसन गिलानी के भाई थे। मरहूम का नमाज जनाजा सोमवार की सुबह 11 बजे दरबार हजरत मूसा पाक शहीद में अदा किया जाएगा। इंतकाल की खबर पर गिलानी हाउस की फजा सोगवार हो गई। डीडी खान में छुट्टी के रोज लंडा बाजार की रौनकें दुबाला। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं। आशरिश फाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्द मौसम में छुट्टी के रोज लंडा बाजार की रौनकें दुबाला। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। छोटे बच्चों के लिए जर्सियाँ वगैरह खरीद रहे हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को। लंडे के अलावा कोई चीज़ सस्ती भी नहीं है, बस लंडा ही सस्ता है गरीब के लिए, बस लंडा ही। लंडा बाजार में खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना था कि महंगाई के दौर में लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं। लंडा बाजार में मुनासिब कीमत पर गर्म कपड़े मिल जाते हैं, जिससे सर्दी से बचाव का इंतजाम किया जा सकता है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। नए साल की शुरुआत में ही खान साहब ने हमारे लिए पेट्रोल की सूरत में जो है जी पेट्रोल बम गिराया है। मॉडल बाजार है डीजी खान का, ये विजिट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हमें मिल रही हैं मौसम के हिसाब से। डॉलर की बढ़ती कीमत ने लंडा बाजार को भी मुतासिर किया है। लंडा बाजार में आए शहरी गुज़श्ता साल की निस्बत इस मरतबा कीमतों में इजाफे का शिकवा करते भी दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सर्दी में ठिठुरते मुस्तहिकीन के लिए मुखय्यर हजरात मैदान में आ गए। मुल्तान में जमात इस्लामी के ताउन से ज़रूरतमंद अफराद में गर्म बिस्तर तकसीम किए गए। तकरीब के अहवाल बता रहे हैं जुनैद अनवर।
सर्दी में गर्म बिस्तर किसी नेमत से कम नहीं, इसकी अहमियत वही जान सकता है जो इससे महरूम हो। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार जमात इस्लामी भी इस ज़मन में सरगर्म है। लेजेंड कॉलेज मुमताज़ाबाद में तकरीब का इनाकाद किया गया। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से बिस्तर तकसीम किए। सर्दियों के अंदर जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको पूरे बिस्तर की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर लिहाफ, गद्दे और तकिए होते हैं, तो अल-खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूरतमंदों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। टीम यूसी की सतह पर डाटा मुरतब करती है। पहले मरहले में 100 अफराद को बिस्तर दिए। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन अहमद चुगताई ने दूसरे मरहले में भी मजदूरों की इमदाद का अहद किया। ग्रॉस रूट पर हमारे जो वर्कर्स हैं हमें अपने अपने इलाकों से, अपने हलकों से आइडेंटिफाई करते हैं। हम फिर उसकी वेरिफिकेशन के बाद जो है ये सारा सिस्टम जो है अपना, ये तो एक विंटर पैकेज है, हमारे जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इसी सिस्टम के तहत चलती हैं। एक बिस्तर में रजाई, तकिया और दरी शामिल थी। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने खिदमत का जज्बा जारी रखने का आज़म भी किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान के रेक्स थिएटर में लाहौर के मरूफ कॉमेडियन इमरान शौकी की एंट्री। ड्रामा नशीले नैन में मरकजी किरदार अदा करने वाले इमरान शौकी की रोहित से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं मुल्तानियों से मिलने वाली मोहब्बत नाकाबिले फरामोश है। मरूफ कॉमेडियन इमरान शौकी का कहना था कि मुल्तान ही उनकी पहचान है। मुल्तान ने उनकी पहचान दुनिया भर में बनाई है। इस जगह आते ही बचपन और अपनायत का एहसास होता है। इमरान शौकी ने नए फनकारों को पैगाम देते हुए कहा कि नए आने वाले फनकार मेहनत से काम करें तो वो वक्त दूर नहीं जब कामयाबी उनके कदम चूमेगी। गया था, वहां से नहीं आया था, मैं यहाँ से प्रमोट होकर वहां गया था। मुल्तान वालों ने मुझे वहां पहुंचाया, तो उन लोगों की मोहब्बत की वजह से इमरान शौकी बन गया। और आज इसी मुल्तान में जहां हमने बहुत स्ट्रगल की, जहां मेहनत की, और जवार बलोच साहब की मेहरबानी, उन्होंने ड्रामा फिर एक दफा जिंदा कर दिया। रोहित स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।